Camera. नमस्कार मैम। Namaskar, Surya. On your camera, please. Yes, Surya. How are you? फाइन मैम। Okay. Today Rashmi is not there. No problem. You remembered about the previous class? What we learned? We were talking about which topic? What was the topic we are learning? What we were learning in the previous class about the tissues. Are you able to hear me? Am I audible? यस मैम। Okay. In the previous class, we were learning about the tissues. What do you mean by tissue, Surya? मैम टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल। Group of cells performing a similar type of task. Group of cells and they are performing a same task. Can you just wait for some time? I just want to connect it from the other. Recording in progress. मैम आप म्यूट हो। मैम आप म्यूट हो। Sorry. Okay. In the plant tissue, plants are of two type of tissues. They are meristematic and परमानेंट permanent tissue. Okay. So, in the meristematic tissue, we have learnt about the three types. What are those? Apical, lateral, and intercalary meristematic tissue. Okay. यस This we मैम। have already learned. Like when the plants start growing, so the roots part
The root part as well as the stem part, they are growing. There the stem parts are growing. And when the apical part means topmost part is growing, that is the apical meristematic tissue. When the root is keep on growing, that is the apical meristematic tissue. But when we talk about the सुंदर को पिला दिया intercalary रे वो meristematic, पिला दिए means उसको in पिला दिए between the branches, if it is keep on growing, then it will be intercalary. And when the thickness of the plant will be growing, when the plant will be growing strong and healthy, then it will be called as lateral meristematic tissue. So this we have already learned. After that, कौन सी रख दी yes, who joined just now and after that they went? गीता दीदी Okay, fine. So this is the meristematic tissue. And after that, in the permanent tissue, what we have learned, that are also of two types. What are those permanent tissue? मैम Simple सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू simple permanent tissue and complex permanent tissue. सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है उसमें? तीन मैम पढ़ा है उसमें। यस मैम पैरेन्काइमा पैरेन्काइमा, वेरी गुड। स्केलर Parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. Okay, so this we have already learned that parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma tissue. as a पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ा कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जस्ट पैरेन्काइमा टिश्यू पे आता है तो वो भी बहुत ही सॉफ्ट रहता है और यहाँ पे लाइव सेल्स रहता है। तो लाइव सेल्स रहेंगे मतलब कि यहाँ पे सेल डिवीजन होते रहेगा। But in case of collenchyma, there are many characters of the collenchyma similar to the parenchyma only. But they have the glue-like structure. They have the glue. Okay, collen means only glue. तो जब glue है तो वो thickness provide कर रहा है और flexibility भी provide कर रहा है। Flexibility, it provides plants flexibility. Apart from in this sclerenchyma, what we have learned that sclerenchyma में मैंने 3 S याद करने के लिए बोला था। एक support, which is giving the support, strength, and what are those? Support, strength और structure. Support, strength और structure. So sclerenchyma क्या provide करता है plant को? Support, strength and structure. Can you remember the points? मैम स्ट्रेंथ सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट, स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ, ये काम होता है स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू का। स्क्लेरेंकाइमा प्रोवाइड करता है सपोर्ट, स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर। Apart from that, in that topic we have learned that they have the deposition of the lignin. Lignin का deposition होता है। What is lignin? मैंने previous class में भी बताया था आपको। In the previous class you were there. लिग्निन प्रेजेंट रहता है स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू में और ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट नेचुरल पॉलीमर है। सेकंड मोस्ट अबंडेंट नेचुरल पॉलीमर है लिग्निन। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बोला था 3 चीज को यहाँ और भी याद रखिएगा। एक लिग्निन, एक मिडिल लैमेला और दूसरा स्क्लेरेट्स और फाइबर, जो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू 2 भाग में बैठता है। आपकी बुक में मेंशन है स्क्लेरेंकाइमा आर ऑफ 2 टाइप। यस मैम आपके बुक में मेंशन है? Yes, Surya, are you there? यस मैम Please on your camera, please. In the sclerenchyma tissue, it is classified it as of 2 types. One it is sclerates and another one it is fibers. Is it there in your book? नो मैम Then what is there?
स्क्लेरेंकामा के बारे में क्या बोला गया? मैम बस यहाँ तक किया आपने आपने बताया है, इसके आगे और नहीं है। लिग्निन, लिग्निन के बारे में बताया कि लिग्निन का बना रहता है उसका सेल्स में, सेल वॉल जो है लिग्निन का बना रहता है, एंड दे डोंट हैव द प्रोटोप्लाज्म। मैम आप देखिए। स्क्लेरेंकामा, अच्छा वही एक पैराग्राफ है ना? यस मैम। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आपका वहां पे बोला गया है कि थिक वॉल्स है, दूसरे लाइन में क्या मेंशन किया? लिग्निन मेंशन किया है। दूसरे लाइन में आप देखिए लिग्निन मेंशन किया है। उसके सेल वॉल में लिग्निन प्रेजेंट रहता है, जो कि सेकंड मोस्ट अबंडेंट नेचुरल पॉलीमर है। जहाँ पे स्क्लेरेंकामा लिखा है वहां पे आप थोड़ा सा बगल में लिखिए सपोर्ट स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ। सपोर्ट मैम स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ, this providing plants the support structure and strength. क्या बताया था आपने? Support, structure और strength। स्क्लेरेंकामा प्लांट्स को सपोर्ट, स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और ये डेड सेल का बना रहता है। यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता है, ये डेड सेल का बना रहता है। इसके सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन रहता है, वो आपके बुक में भी मेंशन है, ठीक है? लिग्निन का डिपोजिशन है। तो ये सब हम लोगों ने इतना पढ़ा हुआ है यहाँ पे। एक सेकंड, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब क्या पढ़ना है हम लोगों को? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ये अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में मैंने एक सेंटेंस बोला था। सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बीच में एक अंतर है। क्या अंतर है? सिंपल जो है वो एक ही टाइप का से टिश्यू बना हुआ है, एक ही टाइप के सेल से टिश्यू मैम बना बहुत हुआ है। सारे तरह का सेल। हाँ, वेरी गुड। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, इसीलिए तो वो कॉम्प्लेक्स है, अदरवाइज वो सिंपल रहता। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो सेम टाइप के सेल्स रहेंगे, एंड दे आर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं, सेम टाइप का मिलते हैं, और वो एक टास्क परफॉर्म करता है। लेकिन इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अलग अलग टाइप के सेल्स मिलते हैं, और तब वो टास्क परफॉर्म करता है। तो इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स है। अब इसका कुछ कुछ और नाम भी होता है। इसको बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का और भी नाम है। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में पहले ये दो टाइप के होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर complex permanent tissue is of two types. Do you have any idea what are those? नो मैम। Xylem and phloem. Complex permanent tissues are of two types, xylem and phloem. ठीक है? Complex permanent tissue is of two types, xylem and phloem. कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या करते हैं? इसका क्या काम होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का प्लांट में? वाटर और फूड, it transport the water and food to the different parts of the plant. Who makes the food in the plant? Which part of the plant makes the food for the plant? कौन कौन सा पार्ट है प्लांट का जो खाना बनाता है? मैम ग्रीन। ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट तो हो गया, लिव्स ही हो गया, और जो अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट है तो वो सब खाना बनाता है। अब खाना तो लिव्स में बन रहा है, लेकिन पहुंचना तो उसको स्टेम में भी है, रूट्स में भी है, नीचे भी।
तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है ना, यही काम है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का. इट इज हेल्पफुल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अब ये एक जगह पे दूसरे जगह ये कंडक्ट करता है, तो इसीलिए इसको दूसरा नाम है, इसको कंडक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? कंडक्टिंग टिश्यू. आपके बुक में स्क्लेरेंट कैमरा के जस्ट नीचे कंडक्टिंग टिश्यू इज मेंशन. सो देयर ओनली यू मेंशन अबाउट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं, और दूसरा एक और नाम है इसका, वस्कुलर टिश्यू. कंडक्टिंग टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ठीक है ना? फिर से एक बार पढ़ते हैं. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है. इट इज हेल्पफुल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड to the different parts of the plant. Food is prepared by the green parts of the plant and mostly the leaves. So food is transported to the different parts of the plant, and that's why it is called as vascular tissue. Okay. Xylem and phloem are both conducting tissue, also known as vascular tissue. ये दोनों नाम है इन दोनों का, xylem और phloem का. Conducting tissue, vascular tissue. Can you remember? वाटर, फूड, मिनरल्स भी बोल दीजिए. तो चलो, फूड तो बना रहा है आपका ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. वाटर कहाँ से आ रहा है? मैम रूट्स में से. आप तो सॉइल में वाटर डाल रहे हो ना, जो भी फर्टिलाइजर दे रहे हो वो भी आप सॉइल में डाल रहे हो. फिर वो जाते जाते वो सॉइल में मिक्स होके ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंच रहा. तो इसका मतलब वाटर और मिनरल्स, ये भी आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए नीचे से ऊपर तक. तो ये दोनों ही काम जाइलम और फ्लोएम करता है. ठीक है. कैन यू रिमेम्बर सूर्या? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स. व्हाट आर दोस? मैम एक्सलम, जाइलम जाइलम और एंड फ्लोएम. जाइलम एंड फ्लोएम. इसका दूसरा क्या नाम है? इसको और क्या बोलते कंडक्टिंग टिश्यू एंड वेसिकल टिश्यू. हैं? टिश्यू. वेरी गुड. ये क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है? मैम ग्रीन. क्या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? वाटर और वाटर, फूड, वाटर, फूड और मिनरल्स. वाटर, फूड और मिनरल्स. मिनरल्स. अब चलो हम लोग एक एक करके थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं. ठीक है. क्या है जाइलम और क्या है फ्लोएम? चल, अब एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज जाइलम? जाइलम, दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द जाइलोज. इसका मतलब होता है वुड. इसको चाहे तो आप इसको वस्कुलर टिश्यू भी बोलेंगे और चाहे तो मैकेनिकल टिश्यू भी बोलेंगे. मैकेनिकल इसलिए क्योंकि ये मशीन की तरह काम कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन का. जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स. ये 4 डिफरेंट टाइप्स का रहता है. पहला है ट्रैकिड्स, दूसरा है वेसल्स, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा. ये दोनों वर्ड तो हम लोग पहले भी सुने हुए है ना. यस मैम. ये जो जाइलम है ये जाइलोज वुड से, जाइलोज वर्ड से निकला हुआ. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द जाइलोज. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जाइलोज? इट इज कॉल्ड एज वुड. जाइलम को वस्कुलर टिश्यू भी बोलेंगे और एज वेल एज मैकेनिकल टिश्यू भी बोलेंगे क्योंकि ये मशीन की तरह काम कर रहा है. इट इज हेल्पफुल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. Xylem is of 4 types: tracheids, vessels, xylem parenchyma और xylem sclerenchyma.
So all are of different types. Okay. तो ये ट्रैकिड्स है, ये ट्रैकिड्स है, जैसे ट्रैकिया रहता है वेसल्स की तरह। और पैरेन्काइमा का जो प्रॉपर्टीज है ना, वही कुछ इसमें भी है, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ना, व्हाट आर दे डूइंग? पहले आप लिख लीजिए, ट्रैकिड्स है, वेसल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। प्लीज राइट डाउन। Then, ma'am. इज इट डन? Yes, ma'am. अब what is the main function of the xylem? Xylem is helpful in the transportation of water and minerals to the different parts of the plant. वाटर भी आप सॉइल में डाल रहे हो, मिनरल्स भी आप सॉइल में डाल रहे हो, और ये दोनों की ट्रांसपोर्टेशन ऊपर तक पूरे प्लांट में, पूरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में it is transported with the help of the xylem. So what is the main function of the xylem? It is helpful in the transportation of water and Minerals. minerals. ठीक है, तो आप याद रखोगे, the main function of the xylem is helpful in the transportation of water Ma'am, and minerals. water and minerals. वेरी गुड। अब जाइलम जो होता है वो 4 टाइप का होता है, क्या क्या रहता है वो? Ma'am, xylem, parenchyma, collenchyma, vessels, and tracheids. वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कैन यू रिमेम्बर दिस ऑल 4? और ये चारों का अलग अलग थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा वेरी करते रहता है। तो आई थिंक इट विल बी गिवन इन योर बुक ऑल्सो। शो मी योर बुक प्लीज। अच्छा, यहाँ पे तो फ्लोएम मेंशन किया आपका, पहले फ्लोएम है, फिर उसके बाद जाइलम दूसरी पेज में क्या? और फिर एनिमल टिश्यू शुरू हो गया, चलो ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। नाउ लर्न, रिमेम्बर दैट द जाइलम complex permanent tissues of two types, xylem and phloem. Xylem is helpful in the transportation of water and minerals to the different parts of the plant, and it is of 4 types: tracheids, vessels, xylem parenchyma or xylem sclerenchyma. The main function of the xylem is it is helpful in the transportation of water and minerals. इसको Minerals. वास्कुलर टिश्यू के साथ साथ मैकेनिकल टिश्यू भी कहते हैं। मैकेनिकल टिश्यू क्योंकि मैकेनिक का काम हो रहा है, जैसे मशीन टाइप का काम हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन का ऊपर नीचे। नाउ विल टॉक अबाउट द अनदर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दैट इज द फ्लोएम। क्या नाम है उसका? फ्लोएम। ओके, फ्लोएम बोलेंगे। लाइक जाइलम, फ्लोएम फ्लोएम जो होता है वो कंटेन करता है ट्यूब्स बट परफॉर्म्स नो मैकेनिकल फंक्शन। फ्लोएम भी जो है आपका वो ट्यूब्स तो कंटेन करेगा, जैसे ट्यूब्स की तरह रहेगा, जाइलम भी रहता है ट्यूब्स की तरह, फ्लोएम भी ट्यूब्स की तरह रहेगा। लेकिन इसको मैकेनिकल टिश्यू नहीं बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मैकेनिकल फंक्शन नहीं करता है, ये कोई भी मैकेनिकल फंक्शन ये परफॉर्म नहीं करता है, ये परफॉर्म नहीं करता है। मैकेनिकल फंक्शन परफॉर्म करता है जाइलम, ठीक है, फ्लोएम नहीं कर रहा, परफॉर्म्स नो मैकेनिकल। Phloem is composed of 4 elements or cell. It is composed of 4 cells. One, it is sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma, companion cells, sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma or phloem fibers.
केवल फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ के बाकी ये तीनों सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, लिविंग सेल होता है, मतलब कि ये सेल डिवीजन परफॉर्म कर सकता है। फ्लोएम फाइबर्स, आपको याद है ना, स्क्लेरेंकाइमा दो टाइप का होता है, फाइबर्स और स्क्लेरेट्स। ये जो होता है वो डेड सेल रहता है। आपके बुक में ये बताओ, सारे को पॉइंट्स को ये वापस एक्सप्लेन किया है क्या? कंपेनियन सेल को, फ्लोएम पैरेन्काइमा को, फ्लोएम फाइबर्स को, इसको एक्सप्लेन किया है क्या? नो मैम। नहीं किया है? नो मैम। आप नाम याद रखिए उसको। एंड इट इज हेल्पफुल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। एंड ऑफ कोर्स द जालम एंड फ्लोएम का डिफरेंस बिटवीन तो दिया होगा आपके बुक में, देखिए तो। इसमें डिफरेंस बिटवीन दिया है फ्लोएम यस और मैम। जालम के बीच का डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन नहीं दिया हुआ है कॉलम बना के जालम और फ्लोएम के बीच में? नो मैम। नो मैम। ये भी नहीं दिया। अच्छा कोई बात नहीं, चलो हम लोग फिर से एक बार पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स, जालम एंड फ्लोएम। जाइलम को और ये पूरे को, टोटल को हम लोग कंडक्टिंग टिश्यू और वास्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। जाइलम क्या हो जाता है आपका? जाइलम को वास्कुलर टिश्यू और मैकेनिकल टिश्यू दोनों कहते हैं। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर वाटर एंड एंड मिनरल्स। minerals. Very good. Xylem is of four types. That is four types of cells it is composed of. What are those? मैम जाइलम, But, पैरेन्काइमा, uh, जाइलम कोलेन्काइमा, विसल्स एंड ब्रैकेट। brackets, vessels, xylem parenchyma, xylem sclerenchyma। और इसका मेन फंक्शन होता है वाटर और मिनरल्स को मिनरल्स। ट्रांसफर करना। आपका दूसरा जो है वो फ्लोएम है। फ्लोएम का मेन फंक्शन होता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है, और इसमें कोई भी मैकेनिकल फंक्शन ये परफॉर्म नहीं करता है। दूसरा, ये भी चार टाइप के सेल्स का बना रहता है, तो वो कौन कौन सा रहता है? सिव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम आपका फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स, ये भी चार टाइप का बना रहा है, ठीक है। कुछ डिफरेंस बिटवीन है, देयर आर द फ्यू डिफरेंस बिटवीन द जाइलम एंड पैरेन्काइमा, ओके। जैसे इस तरीके से, if it is not given in your book also, please नो मैम। remember like a column, कॉलम की तरह आप इसको याद कीजिए। जैसे ये कंडक्ट कर रहा है वाटर और मिनरल, ये कंडक्ट कर रहे हैं सॉल्यूट्स और फूड मटेरियल। कंडक्शन इज मोस्टली यूनिडायरेक्शनल, दैट इज फ्रॉम रूट्स टू द एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट। यहाँ पे जो कंडक्शन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे। Conducting channels or tracrary elements are tracheids and vessels. Conducting channels यहाँ पे जो होते हैं वो sieve tubes होता है। Components of the xylem include tracheids, vessels, xylem parenchyma, xylem fibers. यहाँ पे xylem sclerenchyma होना चाहिए। यहाँ पे sieve tubes, companion cells, parenchyma और आपका phloem fibers। These थ्री ऑफ फोर एलिमेंट्स ऑफ जाइलम जो होता है वो डेड होते हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स और फाइबर्स। केवल जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, इसमें बाकी तीनों जो है वो लिविंग रहते हैं, केवल एक फ्लोएम फाइबर्स आपका डेड रहता है। इन एडिशन टू कंडक्शन, जाइलम प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट और फ्लोएम जो है परफॉर्म करता है नो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ओके। इस तरीके से आपका कुछ कुछ डिफरेंस बिटवीन जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा। मैं एक बार आपको बोलती हूँ तो फिर आपको याद रहेगा, ठीक है। जाइलम आपको मेन डिफरेंस तो आपको मालूम है, मेन डिफरेंस क्या हो गया? एक वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है तो दूसरा फूड का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, ठीक है। अब वाटर और मिनरल्स दोनों तो सॉइल में है, तो वो नीचे से ऊपर जा रहा है,
रूट्स को मिल गया, रूट से लेके ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ऑफ कोर्स वो होगा कौन सा डायरेक्शनल, एक ही टाइप का, एक ही डायरेक्शन में नीचे से ऊपर जा रहा है, यूनिडायरेक्शनल। और फ्लोएम तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, लिव्स कभी नीचे भी है, लिव्स ऊपर भी है, ऊपर भी है। अलग अलग जगह लिव्स है, तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बाय डायरेक्शनल हो रहा है, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बाय डायरेक्शनल बाई है। डायरेक्शनल। अब इसका जो चार डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है वो तो आपको दिमाग में रहेगा, क्या क्या चार है, इसके भी चार है, उसके भी चार है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। दूसरी तरफ है आपका सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, इस तरीके से। जो मेन कंडक्टिंग टिश्यू होता है जाइलम का वो ट्रैकिड्स और वेसल्स रहता है। फ्लोएम का मेन कंडक्टिंग टिश्यू जो है वो आपका सिव सेल्स है, सिव सेल्स मतलब पहला वाला पार्ट, ठीक है। जाइलम, वन सेकंड, इसमें ये सभी डेड हैं, केवल एक ये पैरेन्काइमा वाला लिविंग है, बाकी तीन डेड है। इसके केस में तीनों लिविंग है उधर ऊपर में, केवल एक फ्लोएम फाइबर्स जो है वो डेड है, तो ये वाला पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन मेंशन द, और एक मैकेनिकल फंक्शन वाला जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, तो xylem is providing the mechanical strength to the plant, but in case of phloem is not providing the mechanical support to the plant, mechanical strength to the plant, so that's why it is not the mechanical tissue, ठीक है। तो इस तरीके से आप पॉइंट याद रखेगा तो xylem और phloem का आपका एक पैराग्राफ तो बन ही जाएगा। ओके, ना योर टर्न, अब आपका टर्न है, आप मुझे बताओ आपने क्या पढ़ा। टुडे वी रेड अबाउट द which tissue, मैम complex कॉम्प्लेक्स टिश्यू। complex permanent tissue, हाँ, after that what, it is a उसके पास मैम टू टाइप्स, मैम जाइलम एंड फ्लोएम। मैम जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है, और मैम फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है। और मैम जाइलम मैकेनिकल सपोर्ट, होता है। मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कोई भी वर्ड यूज करो, मैकेनिकल फंक्शन प्रोवाइड और करो। मैम फ्लोएम में मैम मैकेनिकल सपोर्ट नहीं होता। जाइलम का 4 टाइप्स बता दीजिए। इसमें मैम जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फोरेन्काइमा, विसल्स एंड ट्रैकिड्स। फ्लोएम का सिव ट्यूब्स, आप लिख लीजिए कहीं पे, सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, लिख लीजिए सिव ट्यूब्स, SEIVE, सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। और ये ओवरऑल कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का और भी दो नाम है, क्या क्या बोलते हैं इसको, कंडक्टिंग टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है। इस तरीके से वी हैव कंप्लीटेड द प्लांट टिश्यू। इन द आफ्टर द समर वेकेशन विल स्टार्ट द एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू हम लोग स्टार्ट करेंगे, और उसको धीरे, इस दौरान आप लोग देखो, अगर अभी पढ़े और फिर उसका छोड़ दोगे ना तो यू विल फॉरगेट दैट, तो थोड़ा 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 डेली पढ़ लो, और हमेशा नोट्स छोटा ही बना, नोट्स छोटा बना के, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट एवरीथिंग शुड बी देयर, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट मस्ट बी देयर इन दैट, ओके। और छोटा सा कोई डायग्राम बना के याद करो, दैट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न, ओके बेटा। नमस्कार, in the next class we'll learn about the animal tissue. नमस्कार मैम। Bye, bye, take care.